Hello, dear students. I am your educator Shashank, and I welcome you all to this revision series. So, today we are going to begin with the first unit of physics, that is natural phenomena. And the first topic that we are going to discuss is reflection of light. So, my dear students, the first thing that we need to understand in this topic is what do you mean by reflection of light? So, suppose this is a plane mirror and a ray of light is incident on it. So on the point of incidence, I draw a normal, and this ray of light is reflected back in the same medium. This is our incident ray and this is the reflected ray. This phenomena of returning back of light into the same medium after striking a smooth surface is known as reflection of light. The angle between the normal and the incident ray is known as angle of incidence, denoted by small I, and the angle between the incident ray and the reflected ray is known as angle of refraction, and it is denoted by small r. So the next thing we need to understand in this topic is what are the laws of reflection. The laws of reflection consist of two laws. The first one is that the angle of incidence is equal to angle of reflection, which means the incident ray is incident at which angle, the reflected ray is reflected at the same angle. The second law of reflection is the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray, all these lie on the same plane. So dear students, now beginning with the topic spherical mirrors. So spherical mirrors are of two types. The first one is convex mirror and the second one is concave mirror. अब convex mirror होता क्या है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को कर्व बनाता है, यानी इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और ये वाला जो सरफेस है ये सिल्वर्ड सरफेस है. So a mirror whose reflecting surface is curved outwards is known as convex mirror, whereas concave mirror में क्या होता है कि जो reflecting surface होता है वो अंदर की तरफ को कर्व होता है. So a mirror in which the reflecting surface is curved inward, जिसमें केव जैसा फिगर बने तो उसको concave mirror बोलते हैं. ठीक है. So the next topic is some basic terms related to the spherical mirrors. So the first term is the pole of the spherical mirror. The pole is the center of the reflecting surface of a mirror. Same चीज concave mirror में भी जो reflecting surface का center होगा उसको हम capital P से denote करेंगे और उसे बोलते हैं pole of the mirror. Next is center of curvature of the mirror. Center of curvature का मतलब है जिस बड़े sphere से मैंने इस mirror को काट के बनाया होगा उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं. सिमिलरली जो हमारा कॉन्केव मिरर होगा, इस कॉन्केव मिरर को जिस बड़े स्फेयर से काट के मैंने बनाया उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और डिनोट करेंगे कैपिटल सी से. सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of that glass sphere from which the mirror has been cut. The next term is principal axis. The principal axis is a line joining the center of curvature and the pole of a mirror and extended both ways. Similarly, in a concave mirror, the line joining the pole of the concave mirror and center of curvature and extended both ways is known as principal axis. The next topic is focal length of a convex and a concave mirror. So to understand focal length, first of all we need to understand the nature of convex and a concave mirror. So a convex mirror is of diverging nature and a concave mirror is of converging nature. जो convex mirror होता है वो इस पे पड़ने वाली किसी भी रेज को डाइवर्ज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट इसके ऊपर करवाई जाएगी तो ये उस रे को कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगा. नेक्स्ट है अगर यहां से भी मैं किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाऊं तो ये भी कुछ इस डायरेक्शन में होगी. अब अगर मैं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक ही पॉइंट पे मीट होती हुई मुझे
नजर आती हैं और इसी पॉइंट को मैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट या फोकस बोलता हूं। सिमिलरली अगर किसी कॉन्केव मिरर में मैं एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करूं, तो क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसलिए ये इसको कन्वर्ज करेगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट करवाऊं, तो ये भी इसको कन्वर्ज करेगा कुछ ऐसे, और फिर से ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मुझे मीट होती हुई नजर आएंगे, और इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली फोकस कह देते हैं हमारे कॉन्केव मिरर का। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोकल पॉइंट, whenever the ray of light is incident parallel to the principal axis on a convex mirror, then those rays of light after reflection through the lens appear to diverge from a point on the principal axis, and that point is known as focus of a convex mirror. Similarly, in a concave mirror, whenever the rays of light incident parallel to the principal axis after reflection through the lens meet at a point on the principal axis, and that point is known as focal point of the concave mirror. So the next topic is the focal length of a convex and a concave mirror. The distance between the pole and the focus of a convex mirror is known as focal length of the convex mirror, and it is denoted by small f. Similarly, the distance between the pole and the focus of a concave mirror is known as focal length of the concave mirror, and it is denoted by small f. Next is radius of curvature. The radius of curvature is the distance between the pole and the center of curvature of a spherical mirror, and it is denoted by capital R. Similarly, in a concave mirror, the distance between the pole and the center of curvature is known as radius of curvature, and it is denoted by capital R. The next thing is relation between focal length and radius of curvature. So the radius of curvature of a spherical mirror is equal to twice of focal length. अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारे एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, जनरली एक क्वेश्चन इस रिलेशन पे बेस्ड आ जाता है, वो आपको सिंपली फोकल लेंथ दे देता है, कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर. द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स. एक स्फेरिकल मिरर जब कभी भी इमेज फॉर्म करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रे डायग्राम्स का. रे डायग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुछ प्रिंसिपल रेज के बारे में पता होना चाहिए. प्रिंसिपल मतलब जो मेन रेज हैं जिनकी मदद से हम कोई भी रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. प्रिंसिपल रेज ऐसी रेज होती हैं जिनके बारे में हमें इंसिडेंस की डायरेक्शन भी पता होती है और उनके रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी पता होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रे कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करके दिखाऊं, तो ये रे हमेशा इसके फोकस के थ्रू ही पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. सिमिलरली, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाऊं, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करके फोकस से ही पास हो रही है. हमारी नेक्स्ट प्रिंसिपल रे है, जो भी रे फोकस से पास होती हुई एक कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सिमिलरली, जो भी रे फोकस की तरफ इंसिडेंट होगी कॉन्वेक्स मिरर में, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस after reflection through the mirror becomes parallel to the principal axis. The next principal ray is whenever a ray of light passing through the center of curvature is incident on a concave mirror, then it is reflected back along its same path, that is its path of incidence. ये इंसिडेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी और ये रिफ्लेक्ट भी इसी डायरेक्शन में होगी. इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी रे हमेशा हमारे स्फेरिकल मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए ये हमेशा सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. सिमिलरली, जो भी रे हमारी कॉन्वेक्स मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होगी, तो ये हमेशा इसी पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. द नेक्स्ट प्रिंसिपल रे इज व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पोल ऑफ अ मिरर,
then it is reflected at the same angle with the principal axis at which it is incident, which means ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम होंगे. सपोज दिस इज एंगल आई, सो दिस विल ऑल्सो बी एंगल आई. ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे. सिमिलरली एक कॉनकेव मिरर में भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली पोल पे कोई मैं इंसिडेंट करवाता हूँ तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो नाउ लेट अस डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. सो फर्स्ट लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ये कोई दो रेज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं. इस केस में मैं प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल लेके चल रहा हूं, तो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगे, जैसा हमने प्रिंसिपल रेज के बारे में पढ़ा था उस समय डिस्कस किया था. तो यहां पर एक पॉइंट इमेज फॉर्म होगी हमारे ऑब्जेक्ट की. इस रे डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, यानी कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा और उसकी एक पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है. तो मैं कह सकता हूं कि एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है. दूसरी चीज, ये रेज सच में एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज बन रही है. लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, क्योंकि पॉइंट साइज्ड इमेज है. इसी के लिए ये चीज चेक करने के लिए मुझे सेम रे डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो मॉडिफाइड रे डायग्राम बनाने के लिए अब अभी भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे ही है, लेकिन जो रेज हैं वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना लेकर के केवल एक दूसरे के पैरेलल लेंगे. अभी भी हमारी दोनों रेज इन्फिनिटी से ही आ रही हैं, लेकिन एक रे जो फोकस से आती है वो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. अब अगर मैं दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है. तो जो हमारी इमेज है वो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इस तरीके से बन जाएगी, ए डैश बी डैश. अब अगर मैं इमेज के नेचर के बारे में बात करूं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसकी एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी तो इन्वर्टेड बनी, और दोनों की दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे सच में इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक रियल इमेज बनी. तो अगर मैं यहां पे नेचर ऑफ द इमेज लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रियल. सेकेंड जो हमारी इमेज बनी वो बनी इन्वर्टेड, और थर्ड जो हमारा नेचर है इमेज का वो है हाईली डिमिनिश्ड. नेक्स्ट, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे था, इस वाले केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे रखा है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए फिर से कुछ प्रिंसिपल रेज का यूज करेंगे. एक पहली प्रिंसिपल रे में ले लेता हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास होती है. सेकंड, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहां पे सीधे सीधे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा. ए डैश बी डैश जो है ये हमारी इमेज हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ए बी से डिनोट करते हैं. फिर से अगर मैं इस इमेज की नेचर की बात करूं तो जो इमेज है, क्योंकि यहां पे दो रेज सच में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज होगी. सेकंड, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है कि मेरी इमेज डिमिनिश्ड बन रही है. एंड थर्ड,
ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज। अब कॉनकेव मिरर में ही जो हमारा थर्ड केस आता है उसमें हमने ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर रखा हुआ है। फिर से दो प्रिंसिपल रेज ले लेते हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास होते हुए रिफ्लेक्ट होती है, और सेकंड जो फोकस से पास होती हुई जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन गई, और ये जो ए बी था ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब अगर इस वाले केस में मैं नेचर ऑफ द इमेज की बात करूं तो फिर से दो रे ऑफ लाइट सच में यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज। सेकंड, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका साइज और इसका साइज मुझे दिख रहा है कि एकदम एग्जैक्टली इक्वल आता है, तो सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। और थर्ड, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। द फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और मैंने इस वाले केस में ये एज्यूम कर लिया है कि ये इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। तो क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो ये इन्वर्टेड इमेज। So the next ray diagram is when the object is placed between the center of curvature and the focus. So to draw it again we will take two principal rays, one which is incident parallel to the principal axis, it will pass through the focus after reflection, and second which will be incident on the mirror from the center of curvature, it will be reflected back along the same path. तो ये यहाँ कहीं जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पे, और यहाँ कहीं हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ए डैश बी डैश। फिर से अगर मैं नेचर ऑफ द इमेज की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट, दो रेज सच में एक दूसरे को काट रही हैं तो रियल इमेज बनेगी। सेकंड, अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज जो बना वो बड़ा है, तो ये कैसी बन गई, मैग्नीफाइड। एंड थर्ड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। अब बनेगी कहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहीं जाकर के हमारी इमेज बनेगी। ठीक है। द फिफ्थ रे डायग्राम इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे, फिर से इस रे डायग्राम को बनाने के लिए दो प्रिंसिपल रेज लेंगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी वो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब मैं देख रहा हूं कि ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो ये इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनाएंगे। ठीक है। इन्फिनिटी पे भी जहां कहीं पे भी इमेज बनेगी तो मुझे दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी। दूसरा, ये दोनों की दोनों रेज सच में कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो पहला तो हो गया कि इमेज तो रियल ही बनेगी। सेकंड, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा था, इन्फिनिटी पे जाकर के कुछ इमेज बनाएगा तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। एंड थर्ड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड हो जाएगी।
Now coming on to the last ray diagram of a concave mirror, which is when the object is placed between the pole and the focus. पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ होता है, फिर से दो प्रिंसिपल रेज, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, और सेकंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं देख रहा हूं कि इस तरफ तो ये दोनों की दोनों रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इधर जाके तो कहीं मिल नहीं सकती। इनको अगर मुझे मीट करवाना है तो इन्हें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कहीं, तो ये पीछे जाकर के कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, और जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है। अब क्योंकि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को सच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये पीछे कहीं मिरर के पीछे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा, ये कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। रियल इमेज कहां पे बनेगी? जहां पे दो रेज एक दूसरे को सच में काटेंगी। और वर्चुअल इमेज कहां पे बनेगी? जहां पे दो रेज अपीयर कर रही होंगी कि वो मीट हो रही हैं, जहां पे वो सच में मीट नहीं होंगी, उनको आगे या पीछे कहीं प्रोड्यूस करके हमें मीट करवाना पड़ेगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिख रहा है छोटा था, इमेज बनी थोड़ी सी बड़ी, तो मैं इसमें लिख सकता हूं मैग्नीफाइड। एंड द थर्ड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो इरेक्ट इमेज बनेगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। द फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस केस में मैंने अज्यूम किया है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ रही हैं। तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये इन रेज को कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा ताकि मैं उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो वो फोकस से पास हो। इस वाली रे को भी कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा। अब यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा है कि ये जो इमेज है, क्योंकि सच में रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके उनको अपीयर ऐसा हो रहा है कि किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, देयरफॉर ये इमेज एक वर्चुअल इमेज बनेगी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा और उसकी एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। लेकिन इस रे डायग्राम में देख के मैं ये नहीं बता सकता कि वो इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इसके लिए मुझे फिर से इस रे डायग्राम में कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब इस केस में मैंने दोनों रेज को, इंसिडेंट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया था। अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना लेकर के दोनों रेज को एक दूसरे के पैरेलल तो लूंगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लूंगा। ये रेज भी कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। पहली वाली रे फोकस से पास हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी वाली रे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये एक नॉर्मल रे की तरह एक्ट करेगी और ये सेम डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूं तो ये यहां कहीं हमारी इस वाली रे को इंटरसेक्ट करेगी और यहां पे एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब अगर मैं इस वाले केस में नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो कैसा नेचर है इमेज का? ऑब्वियसली इंफिनिटी से आ रहा था तो यहां पर डिमिनिश्ड इमेज बनी है, विच इज हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड पार्ट, क्योंकि रेज को पीछे प्रोड्यूस करके मीट करवाना पड़ रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज। एंड थर्ड, because image is formed above the principal axis, therefore it is erect। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इससे पहले
जो भी हमने रे डायग्राम्स डिस्कस किए थे उसमें वर्चुअल इमेज नहीं रियल इमेज बन रही थी, तो हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो द नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो वो सिमिलर काइंड ऑफ इमेज बनाता है। ठीक है, तो मैंने कहीं पे भी इसको पोल, जो हमारा पोल था, पोल के और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी एज्यूम कर लिया है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो फिर से दो प्रिंसिपल रेज बनाएंगे। एक मैं बनाता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी ऑब्जेक्ट से, वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कुछ उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ताकि वो बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके फोकस से पास हो। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों रेस को जब मैंने बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी कहीं पोल और फोकस के बीच में। लेकिन फिर से क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है तो मैंने इसको दोबारा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये चीज़ याद रखना, इस चीज़ में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं कि वो वर्चुअल इमेज को डार्क लाइन से बना देते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। अब इस वाले रे डायग्राम में अगर मैं नेचर ऑफ द इमेज की बात करूं तो क्या होगा नेचर? नेचर में सबसे पहले तो इमेज कैसी है, क्योंकि दो रेज बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके बन रही है, मतलब सच में इंटरसेक्शन नहीं है रेज का, तो ये एक वर्चुअल इमेज हो गई। सेकेंड इज जो हमारी रे है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका साइज इमेज से बड़ा है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है? डिमिनिश्ड। एंड द थर्ड पार्ट इज क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई है तो ये एक इरेक्ट इमेज है। नाउ टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन the image formation by spherical mirrors, we have the mirror formula, which is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. This is known as the mirror formula, जहाँ पे f is the focal length of the mirror, v is the distance of image from the pole, from the pole of the mirror, and u is the distance of object from the pole of the mirror. This is the mirror formula. Next we have magnification, which is denoted by small m. Magnification is minus v by u, also denoted by height of the image upon height of the object. मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी हो गई, उसको निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। द फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द image upon size of the object, and another one is the distance of the image from the pole upon the distance of the object from the pole. Now to apply these formulas we need some sign conventions. That is, if the object is placed at the left side of the mirror we take its distance as negative. However, if the object is placed at the right side of the mirror then we take its distance from the pole as positive, and we have some more sign conventions which we will be discussing in the next topic. Now coming on to the sign conventions. Suppose this AB is our object and this A dash B dash is our image. So the first rule of the sign convention is that object is always placed on the left side of the mirror, and this would be the direction of incident ray. Now the sign conventions say that all the distances are measured from the pole of the mirror.
जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा सारी मिरर के पोल से स्टार्ट करूंगा और उस ऑब्जेक्ट या इमेज की तरफ मैं लेकर के जाऊंगा उस डिस्टेंस को। सपोज इफ आई नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, this will be taken negative. Why? Because it is opposite to the direction of the incident ray. जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो भी डिस्टेंस आप इमेज की डिस्टेंस आप पोल से मेजर कर रहे हैं और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, आप इसकी डिस्टेंस पोल से इस तरफ को मेजर कर रहे हैं, अगेन दिस वुड बी नेगेटिव। अगर मैं कोई डिस्टेंस पोल से और इस साइड को मेजर कर रहा होता तो मैं उसे पॉजिटिव लेता। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। नेक्स्ट, कोई भी डिस्टेंस अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड्स मेजर करूंगा तो उसको पॉजिटिव लेकर के चलूंगा, व्हिच मींस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव इन दिस केस। और कोई भी डिस्टेंस अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करूंगा तो उसको मैं नेगेटिव लेकर के चलूंगा, व्हिच मींस दैट द हाइट ऑफ द इमेज इन दिस केस इज नेगेटिव। सिमिलरली हमने देखा था कि हमारे जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस लेफ्ट साइड में लाई करता है, तो उसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल पॉइंट जो होता है वो राइट साइड में लाई करता है, इसलिए हम उसका फोकल जो भी फोकल लेंथ होगा उसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। नाउ वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। नाउ लेट अस कम ऑन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at a distance of 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image of the bus. So उसने हमको सिंपली क्या चीज दे दी है, एक रे डायग्राम अगर मैं सिंपली इसका कंस्ट्रक्ट करूं तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रेयर व्यू मिरर में यूज किया जा रहा है। तो इससे एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये पोल हो जाएगा हमारे मिरर का, और उसने हमको दे दिया है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो उसने हमको इनडायरेक्टली फोकल लेंथ यहां पे दे दिया और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स है। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, एक बस है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से का मतलब है कि पोल से, u उसने हमको दे दिया है सीधे सीधे 5 मीटर। अब इस u को मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा ये मुझे साइन कन्वेंशन से चेक करना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि बस इधर है तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूं, इसीलिए मैं -5 मीटर्स लेकर के चलूंगा इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं या स्फीयर कंप्लीट करूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पे है, व्हिच मींस उसने हमें ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर दी है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर्स। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करने की डायरेक्शन सेम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लूंगा, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी कैसी आएगी फिर, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, तो फोकस को फोकल पॉइंट भी जो होगा कुछ यहां पे लाई करेगा कहीं बीच में। अब मैं सीधे यहां से फोकल लेंथ निकाल लेता हूं। फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाज +3 अपॉन 2 which will be 1.5 meters plus 1.5 meters। अब हमें u पता है, हमें v पता है, सिंपली उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज की हमको डिस्टेंस निकालनी है। इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है तो इसी फॉर्मूले को मैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकता हूं। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1/v क्या बन जाएगा, 1/1.5 प्लस
1 upon minus of 1 upon minus 5, which would be 5 plus 1.5 divided by 7.5, which becomes 6.5 upon 7.5. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन v. अब हमें v कैलकुलेट करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 7.5 अपॉन 6.5, which is plus of 1.15 मीटर, which means ये कॉन्वेक्स मिरर बस की इमेज जो है 1.15 मीटर इस तरफ बनाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पोल से मेजर करूंगा 1.15, तो इमेज हमारी यहां कहीं बनेगी। नेक्स्ट हमें बताना है नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन इज 1.15 मीटर। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा हमारी इमेज का? मैग्निफिकेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन से हमको उसका नेचर पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन इज माइनस v अपॉन u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं माइनस v अपॉन u से मैग्निफिकेशन निकालूं तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 1.15 अपॉन माइनस 5, which is 0.23 प्लस 0.23 मैग्निफिकेशन आ रहा है और ये एच आई अपॉन एच ओ के बराबर है। तो एच आई अपॉन एच ओ इज प्लस 0.23, which means height of image is 0.23 times the height of object, which clearly shows कि हमारी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड फॉर्म हुई है, क्योंकि 0.23 के फैक्टर से अगर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ छोटी वैल्यू मिलेगी, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। हमको इमेज जो मिली वो डिमिनिश्ड मिली। पोजीशन हमने डिस्कस कर लिया था, नेचर इसका डिमिनिश्ड, एंड क्योंकि इस साइड में फॉर्म हो रही है तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बनाएगा। और हमारे मैग्निफिकेशन में जो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये हमें दिखा रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों पॉजिटिव ही निकल के आ रहे हैं, which means the image is erect above the principal axis. Now let us solve another numerical. An object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror. अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक concave mirror है, ये हो गया concave mirror, this would be the pole of the mirror. An object is placed at a distance of 25 cm in front of a concave mirror. इस concave mirror के सामने 25 cm की डिस्टेंस पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कि हम डिनोट करते हैं u से। अगेन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वुड बी दिस, एंड पोल से जब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करूंगा तो मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाऊंगा, तो u कैसा लूंगा? नेगेटिव। तो ये जो u की वैल्यू हमको दे रखी है ये है माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है। अब कॉनकेव का फोकल लेंथ हमें पता है कि यहां कहीं लाया करता है इस तरफ, तो अगर मैं इसकी फोकल लेंथ मेजर करूंगा तो फोकल लेंथ भी पोल से फोकस की तरफ मेजर करूंगा और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना पड़ेगा उसे मेजर करने के लिए, तो फोकल लेंथ भी कैसी आएगी? नेगेटिव। सो फोकल लेंथ इज माइनस 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? फोकल लेंथ दे दी और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। हमसे पूछ रहा है कि इमेज को कहाँ पे प्लेस करूँ, या कि मुझे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी शार्प इमेज, ये कैलकुलेट करना है। तो सीधे सीधे हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1 अपॉन एफ मीन्स माइनस 1 अपॉन 15, 1 अपॉन यू मीन्स माइनस 1 अपॉन 25,
तो ये क्या हो जाएगा 1/25 माइनस 1/15। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा -5 + 3 LCM हो जाएगा 75। ये वैल्यू आएगी 1/v की। अगर मैं यहाँ से v कैलकुलेट करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 75/-2, तो ये निकल के आएगी -37.5 सेंटीमीटर्स। तो हमें जो स्क्रीन प्लेस करनी होगी एक शार्प इमेज बनाने के लिए वो मिरर से 37.5 सेंटीमीटर दूर प्लेस करनी होगी, लेकिन लेफ्ट साइड में प्लेस करनी होगी या राइट साइड में प्लेस करनी होगी ये कहाँ से पता चलेगा? साइन से। साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं। कहाँ से? पोल से। तो पोल से इस तरफ 37.5 सेंटीमीटर दूर हमको स्क्रीन प्लेस करनी होगी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वो हमको कह रहा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए सीधे हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू hi/ho। अब इस फॉर्मूले का केवल इतना पार्ट लेकर के चलते हैं, माइनस ऑफ -37.5 अपॉन u was -25 is equal to height of image upon the height of object is given in the question and object 4 centimeter in size, which means height of object was also given 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो दिस वुड बी 4 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी हाइट ऑफ इमेज निकल के आ जाती है -6 सेंटीमीटर्स। अगेन 6 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है तो मुझे नेचर में ये तो पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट था वो 4 सेंटीमीटर का था, इमेज जो है 6 सेंटीमीटर की है, विच मीन्स इट इज मैग्नीफाइड। दूसरी चीज हमें क्या पता चल गई? क्योंकि नेगेटिव आ रही है हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कहीं बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो कौन सी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी।